Hare Krishna. So in this particular video, we are going to start with the second video of moment of inertia. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पहले काफी कुछ पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, उसका फटाक से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, देन विल प्रोसीड अहेड. जो ऑलरेडी पढ़ा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके हिसाब से यू हैव टू आंसर some of these questions which I am writing right now. So here is a rod M, mass M and length L, or this is kept parallel to this axis at a distance of A. So what is the moment of inertia of this rod, you are supposed to tell. Similarly, suppose this is the axis and rod is kept like this ML. This is the axis. इस case में this is the axis. Third is this is a section of a ring. This is a section of a ring, and you have to tell the moment of inertia about this point. This angle is theta. The mass is M and the radius is R. चलो फटाफट बोल दो, इसका कितना आंसर हो जाएगा. दिस रॉड ऑफ मास M, लेंथ L, और ये एक्सिस के अबाउट बताना है. तो ध्यान से देखो, इसका जो सारा पार्ट है सबका दूरी तो A ही है. कोई भी आप अगर बॉडी का टुकड़ा ले लो, ऑल आर एट अ डिस्टेंस ऑफ A. सो देयरफॉर डायरेक्टली क्या होता है, सिग्मा mi/ri स्क्वायर जो होता है, इसमें r इज बेसिकली कांस्टेंट फॉर एवरी पार्टिकल ऑन द रॉड. देयरफॉर m चुपचाप बाहर निकाल लेंगे, m इज कांस्टेंट, एंड ये क्या बचेगा, r स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर. सो द आंसर इज ma स्क्वायर. ये पूरा का पूरा मास को, बिकॉज हर एक पार्ट है वो इक्विडिस्टेंट है ना एक्सिस से, a डिस्टेंस पे. सो देयरफॉर आई कैन डायरेक्टली से ma स्क्वायर is the moment of inertia of this rod about this axis like this. These two are parallel. इस केस में moment of inertia कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि सब एक्सिस पे ही है. therefore r सबके लिए 0 है. so therefore moment of inertia is 0. और ये पर्टिकुलर केस में because it is a part of an entire ring, so therefore इसका मास कितना, therefore इसका जो डायरेक्टली मास दे के रखा हुआ है हमको m, so therefore इसका moment of inertia डायरेक्टली हम कह सकते हैं mr स्क्वायर. ऐसे भी देख सकते हैं कि कोई भी एक अगर आप मास लें dm, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r ओनली. इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r ओनली. सो देयरफॉर dm r स्क्वायर में r कांस्टेंट, r स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो dm r स्क्वायर, एंड dm is given to me as m. so therefore I can write it directly as m r square. These were the some of the illustrations that we discussed in the last lecture also. So in this particular lecture we'll discuss two very important theorems. very important theorems. ढंग से समझेंगे, अच्छे से समझ में आएगा आपको. और सबसे पहले कैसे डिस्कशन करेंगे, दो ही थ्योरम पढ़ना है अपने को इस वीडियो में. एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, one is perpendicular axis theorem and another one is parallel axis theorem. Just these are the two videos, two theorems that we have to cover, perpendicular axis and parallel axis. First perpendicular axis we are going to study. So first of all बस थ्योरम बताऊंगा आपको, some important points about the theorem, and then we'll practice lots of numericals only. I don't want to discuss the proof because I want to stress more on the numericals. By solving numericals only, अपने को all the key concepts which are related to the two theorems will become clear. सबसे पहले क्या है, perpendicular axis theorem. In connection with moment of inertia only सब कुछ है. तो perpendicular axis theorem क्या बोलता है, ध्यान से देखो. Suppose there is a body and I have any two axis. चलो ऐसे ही ले लेते हैं. I have any two axes. Say this is y axis. Let us not call it y. Let us call it any axis I1, and let us call this axis. Okay, let us call this axis A and let us call this axis B. Any two mutually perpendicular axis. ये एक speciality है. ये दो axes are mutually perpendicular. Then the axis which is perpendicular to both A and B, चूंकि A and B themselves are perpendicular, हमेशा A क्रॉस B एक एक्सिस तो और आएगा जो परपेंडिकुलर है इसके, और वो एक्सिस का नाम दे देते हैं सपोज C. So IC is basically IA plus IB. मतलब moment of inertia about the third axis which is mutually perpendicular to both this axis will be equal to moment of inertia about this particular axis plus the moment of inertia about this particular axis. ये 100% आपको अच्छे समझ में आना चाहिए. Some key points that you always have to take care of while you are applying this theorem. First, body must be planar. Body must be planar. Planar मतलब body must be two dimensional, not three dimensional. 1D के केस में तो वैसे भी नहीं लगाते. 1D के केस में वैसे भी नहीं लगाते हम. The body must not be three dimensional. Like this theorem you can apply where? Can you apply this in the case of a solid sphere? Can you apply this in the case of a solid sphere? No. Can you apply this in the case of a shell? Shell मतलब hollow sphere.
शेल एंड होलो स्फीयर आर द सेम थिंग्स, कई जगह आप शेल देखोगे, लगा सकते हैं क्या? नहीं। ट्रायंगुलर प्लेट, यस। स्क्वायर प्लेट, यस। डिस्क, यस। डिस्क बहुत ही पतला होता है, उसका हाइट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, वी कैन टेक इट एज 2D ओनली। अच्छा, सिलेंडर के केस में लगा सकते हैं क्या ये थ्योरम? नहीं। So only in case of planar things we can apply this particular theorem, that is perpendicular axis theorem. पहला चीज, body must be planar, very very important, हर जगह नहीं लगा देना, ठीक है? बॉडी मस्ट बी प्लेनर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि फ्यूचर में कंफ्यूज होंगे आप, इसलिए पहले बता दे रहा हूं मैं। सपोज ये सिलेंडर है, सपोज ये क्या है? सिलेंडर। ये मैं कहा एक्स एक्सिस और ये कहा वाई एक्सिस। अगर मैं लिख दिया आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ये सही है गलत है? ये गलत है, क्योंकि बॉडी प्लेनर है ही नहीं। आप ऐसा लिख दोगे स्टाइल में, देखने में अच्छा लगेगा, पर आई एक्स प्लस एक्स वाई, आई एक्स प्लस आई वाई, आई जेड नहीं होता है। इसके प्रूफ में ऐसा करा है, ऐसा इफ यू प्रूव दिस theorem, इसका एक proof भी है, so you'll realize that it is only valid for planar bodies. We are not concerned with proof, we are just concerned with the key point that the body must be planar. This is not applicable in this case, but for rectangle, say for example this is a rectangle, and अगर मेरे को इसके अबाउट पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसके अबाउट पता है, then I know about z, then iz equals to ix plus iy. This is very much valid because object is planar, therefore, ठीक है? So this was the first point. Second point that we have to remember is these two axes must be mutually perpendicular, and this is all these three are mutually perpendicular. ये अपने को याद रखना है. All three axes are mutually perpendicular, and ये जो दो axis है A and B axis must be in plane of the body. Must be इन प्लेन ऑफ द बॉडी, मतलब जो दो एक्सिस को, जिस दो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम ऐड कर रहे हैं, वो दो एक्सिस मस्ट बी इन द प्लेन ऑफ द बॉडी। अब वो आप कैसे भी ले सकते हो, उसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल एक बॉडी ऐसे करके आप एक एक्सिस ऐसे ले लो, दूसरा एक्सिस ऐसे ले लो, 1 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, डन। इट मींस सपोज ये एक एक्सिस है थर्ड विच इज आउट ऑफ द बोर्ड, I can directly write that I3 equals to I1 plus I2. Absolutely no problem. You can choose the axis any way you want. Only two conditions, that they should be mutually perpendicular to each other. Second thing, they should lie in the plane of the body. That's it. The third thing is the intersection point from where the third axis will pass. जिसके अब मतलब जिसका मेरे को निकालना है I1 plus I2 करके, that particular thing, the intersection point can be inside or outside the body. It doesn't matter कहां पे, inside or outside. It need not be center of mass also. It can be any point. It need not be center of mass. It can be outside also. मतलब ऐसे करके भी बना सकता था मैं. Suppose for example for this particular body, अगर मेरे को ड्रॉ करना है तो मैं ऐसे भी बना सकता हूँ. ये एक एक्सिस ले लिया और दूसरा एक्सिस ऐसे ले लिया. ये एक्सिस सपोज P, ये एक्सिस Q. तो इसके अबाउट इस बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ये एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, दैट विल बी इक्वल टू इस एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इस एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया. वेरी मच वैलिड. नीड नॉट बी, इट्स नॉट नेसेसरी दैट ये जो पॉइंट हो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये तो एक्सिस शुड लाई इनसाइड द प्लेन ऑफ द बॉडी. नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड. नाइदर इट इज नीडेड दैट दिस पॉइंट बी द सेंटर ऑफ मास. सो एसेंशियली ये तो की पॉइंट्स है, बस अपने को याद क्या रखना है कि I अबाउट C इक्वल्स टू I अबाउट A प्लस I अबाउट B. ठीक है? अब अगर ये क्लियर हो गया है ढंग से, देन विल सॉल्व, देन विल प्रैक्टिस दिस पर्टिकुलर थ्योरम इन ग्रेट डिटेल्स, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. ठीक है, चलो फटाफट, वी नीड टू सॉल्व लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन दैट पर्टिकुलर थ्योरम. सो फर्स्ट एग्जांपल दैट वी आर गोइंग टू टेक इज ऑफ अ रिंग. फर्स्ट एग्जांपल सिंपल सा एक रिंग का लेते हैं. देखो, सपोज दिस इज अ रिंग, मास m एंड रेडियस r. ठीक है, ये वाले एक्सिस के अबाउट कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ये वाले एक्सिस के अबाउट, ये वाले एक्सिस के अबाउट. अगर मैंने क्रॉस बनाया मतलब समझ लो एक्सिस अंदर की तरफ जा रहा है, तो कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस? mr स्क्वायर, राइट? पर मैं आपको पूछ रहा हूं, मेरे को इस एक्सिस के अबाउट बताओ. दिस एक्सिस इज, मतलब समझ रहे हो ना, रिंग ऐसे करके है और ऐसे है एक्सिस. इन द प्लेन ऑफ द रिंग ओनली ये एक्सिस बनाया गया है. ये फिगर और ये फिगर सेम है. ठीक है, इन द प्लेन ऑफ द रिंग है ये. ठीक है, सो यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन. तब तक मैं और भी कुछ कुछ क्वेश्चन लिखता हूं. ये एक डिस्क है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगेन अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सिस यू आर सपोज टू टेल. चलो ये वाला देख लो फटाक से, स्क्रीन पॉज करके ट्राई कर लो, फिर देखो.
इसके अबाउट मेरे को पता है एम आर स्क्वायर, तो मैं क्या करता हूं, इसके परपेंडिकुलर एक और बना लेता हूं, से फॉर एग्जांपल y. So I about z, that is basically mr square, this should be equal to I about x plus I about y. राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सही है, 90 डिग्री है ये. अब अगर ध्यान से देखो तो I about x should be equal to I about y, क्योंकि जैसा x के अबाउट सिचुएशन है वैसा ही एग्जैक्टली y के अबाउट भी सिचुएशन है. करेक्ट? सो दोनों ही तो दोनों तो एक ही है, चाहे वो x हो, इसी को x को पकड़ के घुमा दो वैसे तो y बन जाएगा. सो देयरफॉर दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, कोई डिफरेंस थोड़ी होगा. अगर आप एक रिंग लिए, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट भी आएगा, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा. देयरफॉर आई कैन राइट दैट mr square is equals to 2ix, therefore I about x is mr square by 2. ठीक है, I about x is mr square by 2. आपको याद रख लेना है ये चीज, और ऐसा करके कर सकते हैं आप. तो ये दो आपको खुद से इमेजिन करना था. इसके अबाउट मेरे को पता है तो मैं बता सकता हूँ इसके अबाउट कितना है. उसी तरह से इसके अबाउट बता दो कितना होगा, x कितना हो जाएगा, ये तुम देख के ही बोल सकते हैं I about x कितना होगा. देख इसके अबाउट कितना है फॉर डिस्क, दिस इज अ डिस्क, इसके अबाउट कितना होता है mr स्क्वायर बाई 2. इसके अबाउट कितना हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 4, है ना, क्योंकि दिस प्लस दिस, दैट इज दिस प्लस दिस should be equal to this about this, that is mr square by 2. so therefore I about x, ये दोनों एक ही बात है, तो आंसर आएगा mr square by 4. ठीक है, ये क्लियर है? अगर ये बेसिक्स क्लियर है तो हम आते हैं रेक्टेंगुलर प्लेट पे. रेक्टेंगुलर प्लेट का क्वेश्चन पूछने से पहले कुछ तो मैं आपको बेसिक्स पहले ही पूछ ले रहा हूं. ये A है और ये B है, अगर आपको याद हो देख लो फटाफट. पहले बता दो मेरे को, ये मान लो, चलो मैं एक्सिस का नाम देता हूं एक्स वाई. बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर प्लेट अबाउट एक्स कितना होगा, अबाउट एक्स कितना होगा, याद है कैसे करके लेते थे, अबाउट एक्स लेना है ना, तो ये सारा रॉड्स कंसीडर करते थे, ऐसे करके कई सारे रॉड्स रखे हुए हैं, ये एक्स एक्सिस है, अबाउट एक्स पूछ रहा हूं मैं आपसे, कई सारे रॉड्स ऐसे करके रखे हुए हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स जो आएगा वो कितना आएगा mv स्क्वायर बाई 3. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई कितना आ जाएगा, ऐसे करके रॉड्स रखे हैं, इमेजिन कर सकते हैं हम, सो दैट इज ma स्क्वायर बाई 3. ठीक है, जस्ट अ क्विक रिविजन. इसके अबाउट ये सपोज सेंटर है, ये सपोज सेंटर है, तो इस एक्सिस के अबाउट कितना आएगा, इसको भी नाम देते हैं P और इसको नाम दे देते हैं Q. सो अबाउट P कितना आएगा, देख जब P लेंगे तो ये लेंथ हो गया, तो रॉड्स ऐसे करके इमेजिन कर सकते हैं, तो I अबाउट P इज m a स्क्वायर बाई 12, ml स्क्वायर बाई 12 होता है ना. ये अगर इसको एक्सिस पकड़ें तो आई कैन ट्रीट द रॉड्स केप्ट लाइक दिस विद दिस एज द सेंटर लाइन, देयरफॉर ma स्क्वायर बाई 12. उसी तरह से I अबाउट Q कितना हो जाएगा mb स्क्वायर बाई 12. ये तो बेसिक्स. ओके, नाउ इफ आई टेल यू ये एक एक्सिस है जो इनटू द प्लेन या आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है, ऐसे करके, क्लियर है, इसको मैं देता हूं 1. आपको बताना है I अबाउट 1, I अबाउट 2, I अबाउट 3 और I अबाउट 4. ये है 4, ये 4 क्या है, ये वाला ऐसे करके जा रहा है ये. I1, I2, I3 और I4 आपको बताना है कितना होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया. स्क्रीन पॉज करके ढंग से ट्राई कर लो, फिर स्क्रीन की तरफ देखो. देख I1 बताना है ये, तो इसका क्या मतलब है, दिस इसके अबाउट जो भी है प्लस इसके अबाउट जो भी है, राइट. I अबाउट 1 क्या है, Ix प्लस Iy, तो Ix कितना है mb स्क्वायर बाई 3 प्लस इसके अबाउट कितना है ma स्क्वायर बाई 3. जो भी आंसर, ये है I1. क्लियर है ढंग से, कैसे है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से ही निकाला गया है. I अबाउट 2 कितना होगा, I अबाउट 2 क्या है, ये वाला, ये क्या होगा, ध्यान से देख, ये पूछ रहा है आपसे, इसका मतलब क्या क्या पता होना चाहिए, इसके अबाउट और इसके अबाउट, और उन दोनों का समेशन होगा ये वाला. ये और ये अगर पता चल जाए तो ये बता सकते हैं, यही बताना है. तो ये कितना है, ध्यान से देखो, ये जो लाइन है
ये ऐसे रॉड्स को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब mb²/12 प्लस, तो ये बता दिया, और ये कितना है ma²/3, ये हो गया I2। ठीक है, चलो आजा I3 पे। अब I1 पे सेम ही वैल्यू आएगा जो यहाँ के अबाउट आया था, क्योंकि सिमेट्रिक है तो इसलिए मैं दिया नहीं। इसके अबाउट वही होगा जो इसके अबाउट है, देने का जरूरत नहीं है। इसके अबाउट देख भी लो। चलो I5 भी निकाल लो। सपोज मैं I5 निकालता, एक तो देख तो दिख रहा है कि I1 और I5 सेम ही होगा, क्योंकि बात एक ही है, एक्सिस यहां से पास करे या एक्सिस यहां से पास करे, सिमेट्रिक सिचुएशन है। सो 1 और 5 के अबाउट सेम आना चाहिए, हम चेक कर लेते हैं। I5 कैसे निकालेंगे? अबाउट दिस कितना है देखो, m, हाँ ये एक्सिस अगर पकड़ेंगे तो रॉड्स आर केप्ट लाइक दिस, इनफाइनाइट रॉड्स लाइक दिस, सो mb²/3। I अबाउट 5 आया, mb²/3, ये तो इसके अबाउट, और इसके अबाउट कितना आ रहा है ma²/3। सेम आया क्या जो 1 के अबाउट आया था? देखो सेम आया, आना भी चाहिए, सिमेट्रिक ही है। I1 और I5 आर सिमेट्रिक। I3 देखो फटाक से, I3 पे अगर देख रहे हैं हम लोग, I3 का ध्यान से देखना रे, I3 के अबाउट बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ये। I3 का क्या है? इसके अबाउट प्लस इसके अबाउट, दैट इज इक्वल्स टू I अबाउट 3। तो ये वाला कितना है? ma²/3। ma²/3 ये है, सॉरी इसके अबाउट कितना है? mb²/3। ये वाला है mb², ये है ना रॉड लाइक केप्ट लाइक दिस, mb²/3। और ये वाला कितना है? अबाउट दिस ma²/12। सो ये आ गया I3। I अबाउट 4, इसके अबाउट क्या होगा? जो इसके अबाउट प्लस इसके अबाउट होगा। I अबाउट 4 क्या होगा? इसके अबाउट प्लस इसके अबाउट। इसके अबाउट कितना है? mb²/12, और इसके अबाउट ma²/12। तो ये हो गया मेरा। आपको इसमें से कुछ भी याद नहीं रखना, एक ही याद रखना, ये वाला। ये आपको रटाया हुआ रहना चाहिए कि जो सेंट्रल ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट होता है ना, सेंटर से जो जाता है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? m ऑफ लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर बाई 12। ये याद रख लेना आप, ठीक है। दिस यू हैव टू रिमेंबर। आया कैसे? यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ओनली, सब कुछ आया है। एक और चीज, छोटी सी चीज देखो, अगर ये स्क्वायर होता, इफ दिस वुड हैव बीन अ स्क्वायर, तो आंसर क्या आ जाता आपका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ये सेंट्रल क्या होता? a² प्लस b², मतलब 2a² हो जाता अगर स्क्वायर होता तो आंसर आ जाता ma²/6। बस याद रखना आप, फॉर अ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, जस्ट आपको ये याद रखना है, ठीक है। सो दीज वर सम स्मॉल एप्लीकेशंस ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बेसिक्स आई होप आपको क्लियर है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का। नाउ लेट अस टॉक ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। खैर वो बाद में बता दूंगा। चलो पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे आते हैं हम लोग। तो मैं पहले डायरेक्टली थ्योरम लिख दे रहा हूं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दे रहा हूं, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे हम लोग फटाक से। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है? दैट मोमेंट ऑफ, सपोज मैं एक बॉडी बना रहा हूं, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, ध्यान देना, दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी, एंड आई एम सपोज टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस। ध्यान सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस पे ही क्वेश्चन आता है जनरली। ये सेंटर ऑफ मास है, ये है कोई एक्सिस जिसके अबाउट मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का है। ये डिस्टेंस दिया हुआ है सपोज d, तो इस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास होगा वो होगा I अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस द मास ऑफ द बॉडी इनटू दिस d स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, ठीक है। एप्लीकेबल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ बॉडीज। मैं आपको बता दे रहा हूं इसका की पॉइंट्स जो आपको याद रखना है। एप्लीकेबल फॉर ऑल बॉडीज। अच्छा, ये I क्या है जिसके अबाउट मेरे को निकालना है? ICUM क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, याद रख लेना। M क्या है? M is mass of entire body, mass of entire body, and what is D? Perpendicular distance between axis and center of mass। ये D क्या है? सेंटर ऑफ मास और एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सारा थ्योरम ढंग से क्लियर है? नाउ
थ्योरम तो छोटा ही है. नाउ लेट अस कम टू सम क्वेश्चंस डायरेक्टली. चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट. फर्स्ट एग्जांपल देखो, ये एक रिंग है, ये एक रिंग है, ठीक है. मैं आपको पूछ रहा हूं ये एक्सिस के अबाउट बताओ. ये एक्सिस है सपोज ए, सो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए. सेकंड, अगर ये एक रिंग है, फिर से अगेन इट्स अ रिंग ओनली, ये एक्सिस के अबाउट बताओ, इसका r/2, इसका मास m, रेडियस r, मास m, रेडियस r. ये वाला एक्सिस के अबाउट बताना है a, i अबाउट a कितना होगा बताना है आपको. थर्ड क्वेश्चन, ये वाला एक्सिस हम पकड़ लेते हैं a अगेन, एंड दिस डिस्टेंस इज अगेन r/2. दिस इज अ रिंग. तीनों ही केस में रिंग है, तीनों ही केस में रिंग है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना. रिंग है, मास m है, रेडियस r है. आपको बताना है इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा. आप ट्राई करो फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं. बता दूं सॉल्यूशन, चलो बताना स्टार्ट कर देता हूं. देख, पहला वाला सिंपल है. इस एक्सिस के अबाउट कितना है, इस एक्सिस के अबाउट मेरे को चाहिए. अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज का आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो एक्सिस है और ये जो सेंटर ऑफ मास का एक्सिस है, दे मस्ट बी पैरेलल. मतलब I and ICOM calculated about axis when they are parallel. मतलब use the above theorem basically when I and IC, मतलब जिस एक्सिस के ICOM, ये जो एक्सिस है ना और ये एक्सिस मस्ट बी पैरेलल, तभी लगा सकते हैं, वरना लगा पाना पॉसिबल नहीं. और एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, ये सारा these are all important things only. One more important thing, that ICOM can be about any axis passing through center of mass. There is no restriction कि आप कौन सा एक्सिस लो. जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मान लो रिंग है, ये उसका सेंटर ऑफ मास है, नेचुरल बात है. अब ये ICOM कैसे लेना है. ICOM कोई भी एक्सिस हो सकता है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो, दैट्स इट. ये भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी ले सकते हैं, आउट ऑफ द प्लेन. वो ICOM कंसिडर किया जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है. व्हाई? बिकॉज एक्सिस, द ओनली क्राइटेरिया इज दैट दिस एक्सिस शुड पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास, और उसके अबाउट में ICOM लिख सकता हूं. इट डजंट मैटर कैसे आप ले रहे हैं वो एक्सिस. सो दिस ICOM इज नॉट फिक्स्ड. ICOM इज नॉट फिक्स्ड. अगर आप ऐसे एक्सिस लोगे और ये रिंग है और ये MR है, अगर ये रिंग है ऐसे करके ले रहे हैं अगर आप एक्सिस ICOM लिखने के लिए, ऐसे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. ऐसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. अगर ऐसे ले रहे हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगा ICOM का, MR². पर अगर ऐसे ले रहे हैं तो अभी हमने सीखा MR²/2 हो जाता है. सो देयरफॉर ICOM का वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड. ध्यान में रखना ये सब बात. पिछला जो भी पढ़ाया गया क्रिस्टल क्लैरिटी कॉन्सेप्ट रहना, फिर आगे बढ़ेंगे. तो ये पॉइंट समझ लो अच्छे से कि ICOM प्लस MD². खैर बाकी कुछ आपको करते करते खुद से समझ में आ जाएगा, तो ये चीजें मिटा दे रहा हूं. चलो पहला का आंसर फटाफट देखते हैं. इसके अबाउट मेरे को निकालना है. इसके अबाउट क्या होगा, इसके अबाउट पता है क्या मेरे को, MR². इसके अबाउट क्या होगा, I अबाउट A क्या लिख सकते हैं, देखो I अबाउट COM प्लस MR², क्योंकि D कितना है इस केस में R. A ऐसे है, ध्यान रखना, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना है MR² प्लस इस केस में MR², दैट इज 2MR². सिंपल. चलो सेकंड वाला डिस्कस करते हैं फटाक से. इसके अबाउट कितना हो जाएगा, इसके अबाउट पता है मेरे को MR², इसके अबाउट मेरे को पता है MR² प्लस इसके अबाउट. अब ये दोनों पैरेलल है, ये भी ध्यान रखना. दीज टू लाइंस आल्सो मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर. पैरेलल भी है, कोई दिक्कत नहीं है. इसके अबाउट क्या लिख देंगे फिर, मास ऑफ द एंटायर रिंग इनटू ये डिस्टेंस कितना है R/2 का होल स्क्वायर. ये आ गया 5MR²/4. ठीक है. यहां पे कितना होगा, अब यहां पे परपेंडिकुलर एक्सिस, अगर आप ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे, तो अगर मैं लिखूं कि I अबाउट A इक्वल टू ICOM प्लस MD², तो एक्सिस सबसे पहले ICOM, एक तो ये समझ में आ रहा है कि हमको ये थ्योरम यूज करना ही पड़ेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम. पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो गारंटी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सीधे सीधे परपेंडिकुलर से आंसर नहीं आ रहा. आइडिया भी लग रहा है कि पैरेलल लगेगा.
तो आई अबाउट ए इक्वल टू आई अबाउट सी यू एम। अब ये आई अबाउट सी यू एम में एक्सिस कैसे लेंगे? इट शुड बी पैरेलल टू दिस एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। तो अपने को एक्सिस ऐसे करके लेना है। इस केस में एक्सिस ऐसे मत इमेजिन कर लेना कि एम आर स्क्वायर प्लस एम आर बाई टू का होल स्क्वायर, नहीं। ICUM, फिर जब ICUM लिखेंगे दोनों एक्सिस पैरेलल भी तो होना चाहिए ना, तो ऐसे करके लिखेंगे, दिस शुड बी द एक्सिस। तो ICUM कितना है इस केस में? ये वाला निकाला है ना पहले रिंग के लिए, यूजिंग पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये कितना होता है? एम आर स्क्वायर बाई टू। तो लिखेंगे एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम इंटू डी स्क्वायर। अब ये दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है आपको आर बाई टू, तो वो आराम से हम कर सकते हैं। एम डी स्क्वायर दैट इज एम आर स्क्वायर बाई फोर, दैट इज 3 एम आर स्क्वायर बाई 4। ठीक है, उसी तरह आपको यहां पे देता तो निकाल सकते थे। इसके अबाउट पता है मेरे को एम आर स्क्वायर बाई टू, इसके अबाउट देता तो एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम आर स्क्वायर, 3/2 एम आर स्क्वायर। कहीं भी दे दे निकाल सकते हैं, कहीं भी दे दे हम निकाल सकते हैं। चाहे वो इस प्लेन में दे तो निकाल सकते हैं, या फिर ऐसे करके दे तो भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि अगर एक रिंग दिया है और कैसा भी क्वेश्चन दिया हो तो हम 100% कर सकते हैं। ठीक है, ओके, हम आगे बढ़ते हैं। चलो कुछ कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, फटाक से सॉल्व करो, फिर आगे बढ़ते हैं। सपोज ये एक सेमी रिंग है, इट्स अ सेमी रिंग, मास m, लेंथ r। मास m है और लेंथ r है। चलो वो करने से पहले कुछ कुछ और कर लो, वरना उसमें लटक जाएंगे हम। ये वाला कर लो पहले। ये एक रॉड है, ये एक रॉड है जिसका मास है m और लेंथ है l। ये जो एक्सिस है a, आई अबाउट a कितना होगा आपको बताना है, और ये है l/3। l/3 डिस्टेंस पे है, आई अबाउट a बताना है आपको कितना होगा। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट बताना है कितना होगा। ओके, लेट अस कम टू 6th क्वेश्चन। सपोज दिस इज सेंटर ऑफ मास, इस एक्सिस के अबाउट है I1, दिस एक्सिस इज नेम्ड A, सो आई अबाउट A कितना होगा आपको बताना है। दिस डिस्टेंस इज गिवन D, this distance is given as D, this distance is D1, this distance is D2। ठीक है, मास आप ले लो इसका m, मास ऑफ द बॉडी इज m, दिस इज द सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस है, ये I1 I2 सब कुछ दे दिया है। ठीक है, फटाफट सॉल्व करते रहो। मैं और कुछ कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं, फिर सॉल्यूशन एक ही बार में बताऊंगा। दीज आर ऑल ऑन पैरेलल एक्सिस ओनली। चलो 7th क्वेश्चन, ऐसे करके रॉड रखा हुआ है, rod is kept like this, another identical rod, दोनों का मास m and length is l, about this axis you are supposed to tell। चलो इतना काफी है, फटाफट उसका पहले मैं डिस्कशन करता हूं। यहां से स्टार्ट करेंगे, ध्यान से देख। इसका क्या आंसर हो जाएगा? सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट a निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट a। ओके, कैसे करके निकालेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना है बेटा? ये एक्सिस के अबाउट मत ले लेना, इस एक्सिस के अबाउट एम एल स्क्वायर बाई 3 प्लस एम इंटू इसका स्क्वायर मत कर देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस नहीं है। आई अबाउट सेंटर ऑफ मास मतलब ये एक्सिस के अबाउट कितना है देख लो, ये एक्सिस के अबाउट है एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम इंटू सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस, इसका दूरी कितना है? l/2 minus l/3, that is 6, 2 3s are 3 2s are l/6, l/6। तो d के बदले क्या पुट करना है? l/6 का होल स्क्वायर। अब जो भी आंसर आया वो होगा आई अबाउट a। एलसीएम आ गया 36, 3 प्लस 1 ml स्क्वायर बाई 9, आई अबाउट a। ठीक है, क्लियर है? तो ध्यान रखना कि आई अबाउट सेंटर ऑफ मास लेना। फोटो में हो सकता है दिखने में लग रहा हो सुंदर ये, तो ये मत मार देना कि कोई भी एक्सिस के अबाउट नहीं लेना, बस ये ध्यान में रखना, हमेशा अबाउट सेंटर ऑफ मास लेना, और फिर उस जिस एक्सिस के अबाउट निकालना है उसका सेंटर ऑफ मास से ये दूरी है। दिस डिस्टेंस इज फ्रॉम द
center of mass to that particular axis about which I am supposed to find the center of mass. So therefore be careful that I must be about center of mass, and then this d also must be the distance between the axis and the center of mass of between the axis and the center of mass of that particular body. वो ध्यान में रखना है. ठीक है, चलो ये वाला अगर करते हैं, पहले ये वाला भी सॉल्व कर लेते हैं. इसका सॉल्यूशन ये था 5th वाला का एंड ये है 6th वाले का. ध्यान से देखो, आई अबाउट ए निकालना है, तो आई अबाउट ए पहले लिख लो कि आई अबाउट सेंटर ऑफ मास, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास. आपको गिवन क्या क्या है? I1 गिवन है क्वेश्चन में, ये सब गिवन है जो टिक मारा मैं. दिस थिंग्स आर गिवन टू यू इन द क्वेश्चन एंड आई अबाउट ए निकालना है. तो आई अबाउट ए क्या होगा? आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू d2 स्क्वायर. mr स्क्वायर होगा ना, सेंटर ऑफ मास इसका दूरी. ये आई अबाउट ए मत लिख देना I1 प्लस एम डी स्क्वायर, गलत हो जाएगा. आई अबाउट ए इक्वल्स टू I1 प्लस एम डी स्क्वायर. दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास वाला थोड़ी है. तो आई अबाउट ए इक्वल टू ICOM प्लस एम डी स्क्वायर. नाउ I1 का एक इक्वेशन हम लिख सकते हैं. क्या लिखेंगे? देखो I1 यही लिख दे रहा हूं. I1 का क्या इक्वेशन लिखेंगे हम कि I1 इक्वल टू ICOM प्लस एम डी वन स्क्वायर. ICOM प्लस एम डी वन स्क्वायर. अब ये मेरे को पता है, यहां से ICOM का वैल्यू आ गया I1 माइनस एम डी वन का स्क्वायर. इसको यहां बस पुट कर देंगे तो आई अबाउट ए निकल जाएगा. तो आई अबाउट ए क्या आ जाएगा? I1 माइनस एम डी वन स्क्वायर प्लस एम डी टू स्क्वायर. ठीक है, समझ में आ गया वाला कैसे करना है? तो देयरफॉर बी केयरफुल कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेना है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चलो अभी वाला सॉल्व कर लेते हैं फटाक से, उसके बाद वो वाला कर लेंगे. मास एम, रेडियस आर दे दिया. आई अबाउट, अच्छा किसके अबाउट निकालना वो तो दिया ही नहीं. इसका रेडियस आर ले लो, इसके अबाउट तुमको पता है mr स्क्वायर होता है. रिंग है, रिंग, ये एक रिंग है. ये वाले पॉइंट के अबाउट बताना है आपको. ये ऐसे करके एक्सिस है, ऐसे करके एक्सिस नहीं है, हाँ ऐसे करके एक्सिस दिया हुआ है. सो अबाउट दिस पॉइंट यू आर सपोज टू टेल. वो क्वेश्चन भी क्लियर है. ठीक है, चलो ये वाला ट्राई करते हैं. ध्यान से देखो, इसका रेडियस आर मत लो वरना कचड़ा हो जाएगा. रेडियस ले ले पाई मीटर, उसका रेडियस पाई मीटर्स. फिर सॉल्व करेंगे. चलो फटाक से देखो सॉल्यूशन ऑफ 4. अगर हम ध्यान से देखें, ये एक्सिस को नाम देते हैं ए. तो आई अबाउट ए क्या लिखेंगे रे? आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर. अब सेंटर ऑफ मास कहाँ है? सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं है. अच्छा ये डिस्टेंस कितना होता है सेंटर ऑफ मास का? ये रिंग है, 2r बाई पाई होता है, याद है? सेंटर ऑफ मास का दूरी कितना होता है इस बेस से? 2r बाई पाई, बिकॉज दिस इज अ रिंग. तो 2r बाई पाई, r इज गिवन पाई, सो दिस इज 2 मीटर्स and this distance is pi minus 2 meters. ठीक है, so this is 2 meter. Okay, so I about COM I don't know. I about COM I don't know in that particular equation, but I know I about this axis. Let this be named B. So I can write I about B is ICOM plus M, that is mass of the ring, into this square, that is 2 square means 4. ये तो लिख सकता हूं ना मैं. अरे I about B equals to I about center of mass plus mass of the entire ring. बताया था ना, पूरा का बॉडी का मास होता है m, into this square that is 4. So यहां से I about B पता है मेरे को, I know ना. अभी जस्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में जो रिवीजन करा रहा था उसमें बताया था ये रिंग है, हाफ रिंग है, पर इसका भी mr स्क्वायर ही हो जाएगा क्योंकि सारा जो मास है वो तो r डिस्टेंस पे इक्वी डिस्टेंट है ना. सो देयरफॉर dm r स्क्वायर बाहर निकल गया, इंटीग्रल dm mr स्क्वायर. So mr square minus 4m is basically I about center of mass, that is m. अच्छा ये r square है, r square तो pi square है, तो m into pi square minus 4 is basically ICOM. बस इसको वहां पुट कर देते हैं. तो I about a क्या आ जाएगा? m pi square minus 4 plus m, वो d square कितना है? I about a निकाल रहा हूं, वो पहला इक्वेशन है. I about a equal to I about center of mass प्लस मास ऑफ द रिंग इनटू डी स्क्वायर. अरे सेंटर ऑफ मास का निकल गया ना यार, सेंटर ऑफ मास ये है, इसके अबाउट निकल गया, तो इसके अबाउट क्या होगा? जो पहला इक्वेशन है आई अबाउट ए इक्वल टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर. तो आई अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना है? ये
प्लस m इंटू डी स्क्वायर, बोले तो पाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, m इंटू डी स्क्वायर बोले तो पाई माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके, ये क्या रहा है, m इंटू ये पाई प्लस 2 इंटू पाई माइनस 2, तो पाई माइनस 2 कॉमन, और ये पाई प्लस 2 प्लस पाई माइनस 2, ये क्या आ गया m इंटू 2 पाई m पाई माइनस 2, जो भी अजीब सा उठपटांग आंसर है, आंसर वही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ये वाला एक्सिस उतना ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 में ये एक्सिस के अबाउट निकालना था, दो तरीका है उसको निकालने का। मेथड 1, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है, तो आप इसका निकाल लो I1 चुपचाप अबाउट दिस एक्सिस, I1 अबाउट दिस एक्सिस, और इसका निकालो I2, ये रॉड का निकालो I2 अबाउट दिस एक्सिस, और दोनों को ऐड कर दो। स्केलर क्वांटिटी है तो चुपचाप हम ऐड कर सकते हैं। अच्छा, I1 कितना आएगा इस रॉड का, इस एक्सिस के अबाउट कितना आएगा रे, ये तो ml²/3 आ जाएगा, ml²/3 आ जाएगा, प्लस I2 मतलब इसका, ये रॉड का इसके अबाउट कितना आएगा, ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए I अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सिस नाम दे दो यार इसका A, I2 पे फोकस करते हैं अब, सॉरी I अबाउट A पे फोकस करते हैं, तो वो क्या लिख सकते हैं हम, I अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब I अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना है इस रॉड का, अगर बात करें ऐसे करके हम सेंटर ऑफ मास, मतलब ये है ICOM वाला एक्सिस, ऐसे क्यों चुन रहे हैं, देख ऐसे इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो सेंटर ऑफ मास वाला ऐसे चुनेंगे तो पैरेलल भी आएगा, पैरेलल भी तो रहना चाहिए ना ये थ्योरम लगाने के लिए, ये थ्योरम लगाने के लिए these two axes should be parallel also, and d is the distance between these two axes, so this is the d. So what is I about COM for this rod, ml²/12 plus m, what is this distance, देखो ध्यान से, ये है l/2 और ये है l, so ये क्या आएगा √l² plus l²/4, √5l/2, तो ये हो गया m इंटू, ये डिस्टेंस लिख दिया मैं, इसका स्क्वायर 5l²/4 mr², सही है ना, ये l है और ये l/2 है, √l² plus l²/4, ठीक है, तो आ गया ये md², ml², हाँ, तो अब इस दोनों को ऐड कर देने से जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा, 12 1 16, ये तो 1 आ गया, 4 3 सा 3 5 15 plus 1 16, ठीक है, 4 ml²/3, तो आंसर है 4 ml²/3, एक तरीका है करने का, अभी पता पड़ जाएगा सही किया है हमने कि नहीं। दूसरा मेथड से भी चेक कर लेते हैं, ध्यान से देखिए, तो ये हो गया परपेंडिकुलर एक्सिस वाला मेथड, सॉरी ये हो गया पैरेलल एक्सिस वाला मेथड से सॉल्व किए हम लोग। देयर इज वन मोर वे वी कैन सॉल्व इट यूजिंग अनदर मेथड आल्सो। क्वेश्चन नंबर क्या था 6, वी कैन सॉल्व इट यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस आल्सो। कैसे, ध्यान से देखो, मास m लेंथ l, मास m और लेंथ l। अच्छा, इस एक्सिस के अबाउट निकालना था ना, ये एक्सिस ऐसे करके गया है। अब ध्यान से अगर समझो, इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, जो इस एक्सिस के अबाउट प्लस इस एक्सिस के अबाउट हो, नाम दे दे रहा हूं मैं xy, जो भी, इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, जो इस एक्सिस के अबाउट हो और इस एक्सिस के अबाउट हो। सबसे पहले तो थ्योरम मारने से पहले देख लो कि बॉडी इज प्लेनर और नॉट। Is the body planar? Yes. I mean, these are rods lying in one plane only. So therefore, the question given, the figure given in the question is planar. So certainly I can apply perpendicular axis theorem, no problem. Now, moment of inertia about this is asked. So therefore, moment of inertia about this will be moment of inertia about this plus moment of inertia about this. Now, what is the moment of inertia about this? So for I about x, if we talk about I about x, तो देखो इस रॉड का तो जीरो ही हो जाएगा क्योंकि ये तो उसी एक्सिस पे ही लेटा हुआ है। बचेगा कंट्रीब्यूशन सिर्फ इस रॉड का। इस रॉड का कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली लिख सकते हैं हम ml²/3, लिख सकते हैं डायरेक्टली ml²/3। ओके, आई अबाउट y का बात कर लें तो, आई अबाउट y का बात करें तो कितना होगा, इसका कितना आएगा ml²/3, और इसका कितना आएगा, याद है स्टार्टिंग में क्वेश्चन कराया था जहां पर एक ऐसे करके एक्सिस था और रॉड को ऐसे करके रखा था, दूरी ये था, सो देयरफॉर आया था सीधे ma²। लॉजिकल है ना, सारा मास तो इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम दिस एक्सिस, ma² आ जाता है।
तो उधर से फॉर दिस रॉड व्हाट विल इज आंसर m इनटू ये डिस्टेंस कितना है रॉड का फ्रॉम दिस एक्सिस हर एक पॉइंट का l स्क्वायर. सो देयरफॉर फॉर दिस रॉड डायरेक्टली ml स्क्वायर. सो I अबाउट y मींस इसका लिख दिए प्लस इसका लिख दिए, सिंपल. अब तीनों को ऐड कर देने से आंसर आ जाना चाहिए. तीनों को ऐड करने से 2ml स्क्वायर बाई 3 प्लस ml स्क्वायर. टू ml स्क्वायर बाई 3 प्लस ml स्क्वायर. आंसर तो 5ml स्क्वायर बाई 3 आ रहा है. हमारा शायद कितना आया था 4ml. एक बार यहाँ चेक कर लो यार. ऐसा करके है ml स्क्वायर बाई 3 है इस एक्सिस के अबाउट, और इसके अबाउट कितना है ml स्क्वायर बाई 3 प्लस ml स्क्वायर. तो 2ml स्क्वायर बाई 3 प्लस ml स्क्वायर दैट इज 5ml स्क्वायर बाई 3. पिछले केस में कितना आ गया था रे? पिछले केस में हमारा कितना आया था वो वाले मेथड से. ठीक है, वो वाला मेथड भी देख लो. वो मेथड में करूंगा तो काफी सारा. ठीक है, वो मेथड थोड़ा फास्ट कर देते हैं. एक बार रीचेक कर लेते हैं, शायद वहां पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था. फटाक से देखो. आई एम सॉरी. इधर देख ध्यान से. परपेंडिकुलर एक्सिस अपने को मारना था वो वाला. आई अबाउट ए क्या है? आई अबाउट COM प्लस MD स्क्वायर. ठीक है. आई अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो इसका इस एक्सिस के अबाउट इसका तो है ml स्क्वायर बाई 3 प्लस इसका निकालना है. तो इसका क्या है ml स्क्वायर बाई 12 प्लस m. ये वाला डिस्टेंस कितना है? ये है l एंड दिस इज l बाई 2. सो रूट अंडर l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाई 4 रूट अंडर 5l बाई 2. ठीक है. सो दैट इज ml स्क्वायर बाई 12 प्लस m. d स्क्वायर कितना है? 12 ml स्क्वायर प्लस 4 ml स्क्वायर बाई 3. अच्छा, दोनों को ऐड करना भूल गए थे, चलेगा. इन दोनों को ऐड कर लेना क्योंकि रिजल्टेंट तो दोनों का एडिशन होगा. सो आंसर इज 5 ml स्क्वायर बाई 3, जो वहां से भी आ रहा है. तो अब कोई मेथड लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, चलिए. नाउ विल मूव अहेड टू सम मोर एग्जांपल्स, सम मोर गुड एग्जांपल्स फ्रॉम दीज पर्टिकुलर थ्योरम्स. तो ये कुछ कुछ चीज क्लियर कर दिया ना मैं. हाँ ठीक है. अब कुछ कुछ सिंपल एग्जांपल देख लो, फटाफट खुद से कर लो. अब थोड़ा सा फास्ट बताऊंगा. देख, ये है स्फेयर, मास m, रेडियस r. ये वाले एक्सिस के अबाउट कितना होगा बता दो. दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन टू यू एज 2r. सॉलिड स्फेयर, ध्यान में रखना. सॉलिड स्फेयर मतलब आपको पहले का रिजल्ट याद रहना चाहिए. जो भी ये दो थ्योरम हम यूज कर रहे हैं, पहला परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और दूसरा पैरेलल एक्सिस थ्योरम. फॉर अप्लाइंग दीज टू थ्योरम्स यू शुड बी, आपके दिमाग में यू शुड हैव इन माइंड द प्रीवियस फॉर्मूलाज. दो जो बेसिक्स था, बेसिक फॉर्मूलाज वो आपके दिमाग में रहना चाहिए 100%. सो अबाउट दिस एक्सिस क्विकली फाइंड आउट. पहला, सेकंड, there are two shells of mass m and radius r about this axis. two shells, ध्यान देना, दो शेल है. तीसरा, this is a disk, mass m, radius r, and find about ये वाला. so this is r by 2. चलो फटाक से निकालो. I about a निकालना है आपको. डिस्क क्विज खत्म कर दिया ना. ठीक है. इसके अबाउट निकालो. दिस इज अ ट्रायंगुलर प्लेट. ये दिया हुआ है A, इसका मास है m. दिस इज अ ट्रायंगुलर प्लेट. इट्स अ ट्रायंगुलर प्लेट. हाँ मेरे को याद आया, उसमें एक और एप्लीकेशन है. ठीक है, बता देता हूँ. दिस इज अ स्क्वायर, दिस इज अ स्क्वायर प्लेट, और इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा बताना है आपको. ये वाला एंगल है थीटा. वो एक्सिस के अबाउट कितना होगा? ये ए. आई अबाउट ए. इस केस में ये, जब भी मैं क्रॉस बना रहा हूं ना तो समझ जाना वो आउट ऑफ द प्लेन है. मतलब ये वाला एक्सिस है. जहां जहां पे क्रॉस मारा गया आप समझ जाना आउट ऑफ द प्लेन है, और जहां जहां ऐसे लिखा गया, स्ट्राइक किया गया है, दे आर इनटू द प्लेन बेसिकली. ठीक है, कुछ देर के बाद आता हूं उस पर. अभी ये वाला
ये एक्सिस के अबाउट बताना है 15 डिग्री। अगेन दिस इज अ स्क्वायर प्लेट, मास m, साइड a, स्क्वायर प्लेट ए स्क्वायर प्लेट है सब। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, ये A और ये A वो दे दिया ना। हाँ, इसका मास m, दिस इज अगेन अ ट्रायंगुलर प्लेट एंड ये सेंटर है इसका। दिस पर्टिकुलर एक्सिस A इज गोइंग लाइक दिस एंड दिस A इज द सेंटर ऑफ दिस थिंग। एंड लास्टली, ठीक है, बस इतना ही। क्विकली सॉल्व दिस मच एंड देखो सॉल्यूशन। सो इसके अबाउट पूछ रहा है सॉलिड स्फीयर है, तो हम एक्सिस कैसे चुनेंगे? ऐसे, ये सेंटर ऑफ मास वाला है, तो I अबाउट A क्या आएगा? I अबाउट A आएगा I अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस m r स्क्वायर, पूरा लिख देता हूं, 2/5 mr स्क्वायर प्लस m इंटू सेंटर ऑफ मास से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज दिस मच। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, चलो यहां देखते हैं। दोनों ही शेल सिमेट्रिक है, तो हम क्या करते हैं, एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक का निकालते हैं मल्टीप्लाइड बाई 2, सो द आंसर इज 2 मल्टीप्लाइड बाई, सिर्फ इसका बात करें तो कितना है, शेल है मतलब हॉलो है, 2/3 mr स्क्वायर, सेंटर ऑफ मास ये वाला एक्सिस है, 2/3 mr स्क्वायर अबाउट दिस, प्लस ये एक्सिस के अबाउट कितना है, mr स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2, दोनों का मिल जाएगा। 4-5 लगा देता तो जैसे भी करते वैसे, एसेंशियली कंसेप्ट ध्यान रखना, सिमेट्रिक चीज है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये होगा आंसर जो भी है। डिस्क दिया हुआ है, ध्यान से देखो, इसके अबाउट I अबाउट A निकालना है मेरे को। एक्सिस ऐसे करके चूज करेंगे हम, सेंटर ऑफ मास वाला। फॉर्मूला क्या लिख देंगे कि I अबाउट A इक्वल टू I अबाउट सेंटर ऑफ मास। I अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना होगा रे, mr स्क्वायर बाई 4 प्लस m इसका होल स्क्वायर, md स्क्वायर। m क्या है, मास ऑफ द डिस्क, बार बार बोल रहा था, I अबाउट सम एक्सिस इक्वल टू I अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर। md स्क्वायर, वहां पे m क्या होता है, मास ऑफ द एंटायर बॉडी, और d होता है डिस्टेंस ऑफ द एक्सिस अबाउट विच वी आर सपोज टू फाइंड I फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। सो m इसका डिस्क का पूरा इंटू r/2 का होल स्क्वायर, r स्क्वायर बाई 4। और ये वाला कहां से निकाले हैं, यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। बताया था ना, डिस्क का ऐसे सोया हुआ जो एक्सिस रहता है, लेटा हुआ जो एक्सिस रहता है, उसके अबाउट कितना होता है, mr स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो दिस 3 थिंग्स। अब यहाँ पे देखो, इसको करने का 2 तरीका है। आपको ट्रायंगल का याद है कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया था? ट्रायंगल का ऐसे करके बनाया था। सपोज दिस लेंथ इज a and this height is h. So what was the moment of inertia? Okay, one small error was there. One small error was there. ध्यान से सुनो क्या error है। Moment of inertia इस एक्सिस के अबाउट नहीं था, moment of inertia was about this axis. ये एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, ध्यान देना, ठीक कर लेना। कितना था वो, m h स्क्वायर बाई 6। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, m h स्क्वायर बाई 6। ठीक है, वरना एक काम करो, ये मैं चेक कर लेता हूं, ये क्वेश्चन रहने दो। दिस आई मीन इस एक्सिस के अबाउट था या इस एक्सिस के अबाउट था, आई विल चेक एंड कंफर्म एंड देन लेट यू नो। ठीक है, mh स्क्वायर बाई 6 था, या कौन से एक्सिस के अबाउट था, दिस, आई विल चेक एंड लेट यू नो। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लो एक बार। ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये कितना मान ले, हाँ दिस इज अ स्क्वायर। अच्छा, ये एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है, थीटा ऐसे करके इंक्लाइन कर दिए। ओके, ध्यान से समझो, अगर ये एक्सिस ऐसा नहीं होता, अगर ये एक्सिस ऐसा होता, सपोज आपको मैं कह रहा हूं ये एक्सिस ऐसा करके, से दिस एक्सिस इज लाइक दिस, तो उसके इसके आउट बता सकते हैं क्या कितना होगा? कैसे बताएंगे? यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। कैसे, देखो, इसके ये एक्सिस को मान लेते हैं हम x और ये एक्सिस को मान लेते हैं y। अब ये एक्सिस के अबाउट कितना होगा, ये एक्सिस के अबाउट होगा I अबाउट x प्लस I अबाउट y, राइट। अच्छा, सिमेट्रिकली दिख रहा है कि IX और IY सेम है, और इसके अबाउट कितना है, MA स्क्वायर बाई 6, रटवाया था अभी जस्ट कुछ देर पहले। तो इसके अबाउट क्या करेंगे हम लोग, I अबाउट x प्लस I अबाउट y इक्वल्स टू MA स्क्वायर बाई 6। ऐसे ही बता देता हूं, देखो, I अबाउट x प्लस I अबाउट y लिख देता हूं। फिफ्थ, I अबाउट x प्लस I अबाउट y इक्वल्स टू MA स्क्वायर बाई 6, और ये दो इक्वल है, so therefore I about any axis will be MA square by 12, right? ठीक,
पर ये कौन सा एक्सिस है अबाउट एक्स? ये वाला इस एक्सिस के अबाउट। ओके, अब ध्यान से देखना, सपोज मैं आपको कहता हूं ये स्क्वायर प्लेट है और एक्सिस अगर ऐसा हो तो थोड़ा सा बेंट है, मतलब ये दो कॉर्नर से पास नहीं हो रहा, थोड़ा एंगल से ऐसे करके पास हो रहा है। तो ये कैसे, मान लो ये 1 है, I1 है, इसके परपेंडिकुलर अगर मैं दूसरा बनाऊं ऐसे, दूसरा परपेंडिकुलर अगर मैं ऐसे करके बनाऊं I2, तो ध्यान से समझो, जब मैंने सिर्फ I1 बनाया था, I2 नहीं था उस समय। ध्यान से देखना, इस I2 को यहां से मिटाता हूं मैं, ताकि अपने को थोड़ा क्लैरिटी से समझ में आए, क्योंकि ये समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और बस ये ध्यान रखो कि इसके परपेंडिकुलर बनाया गया है। I2 भी सेंटर से पास हो रहा है और I1 के परपेंडिकुलर है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना। ध्यान से देखो, I2 भी इस स्क्वायर को जो दो पार्ट्स में काट रहा है, आर दे सिमेट्रिक? 1 और 2 ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है, राइट? इसको उठा के घुमा के अगर इसके ऊपर रख दूं तो रखा जाएगा। उसी तरह से यहां पर भी अगर मैं इसको उल्टा करके ऐसे रख दूं तो रखा देंगे। मतलब देयर, आप समझ पा रहे हैं? आई बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूं I about 1 शुड बी इक्वल टू I about 2, क्योंकि ये सिचुएशन जो है, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस सिचुएशन ओनली। क्योंकि इसको अगर आप पलट दोगे ऐसे करके, वी विल गेट एग्जैक्टली I1। समझ रहे हैं आप? इसको थोड़ा टिल्ट करो ऐसे, अगर इसको टिल्ट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो मेरे को ये वाला सिचुएशन मिल जाएगा। देयरफॉर जो कि सिमेट्रिक है, तो I1 इज इक्वल टू I2, और दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ही बनाया है मैंने। देयरफॉर आई कैन राइट दैट I1 प्लस I2 शुड बी इक्वल टू व्हाट? ये वाला एक्सिस के अबाउट कितना था अपना? ma स्क्वायर बाई 6। देयरफॉर I1 भी कितना आएगा? ma स्क्वायर बाई 12। देयरफॉर इसके अगर एक्सिस ऐसा होता तो भी ma स्क्वायर बाई 12, या एक्सिस को आप थोड़ा सा टिल्ट कर दोगे एट एन एंगल ऑफ से थीटा, जो भी थीटा हो फर्क नहीं पड़ता, ऐसे हो या ऐसे करके हो, बस म्यूचुअली अगर परपेंडिकुलर रहे। खैर म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं, आपको तो ऐसे करके पूछा था, अगर क्वेश्चन आपको याद हो। क्वेश्चन में अगर आपको ध्यान से देखो, क्वेश्चन जो आपको याद है तो ऐसे करके पूछा गया था, ये वाला सिर्फ पूछा था। तो हमको खुद से इमेजिन करना है, इसका परपेंडिकुलर लेना है, और वो दोनों का समेशन शुड बी ma स्क्वायर बाई 6, और एक का कितना हो जाएगा? ma स्क्वायर बाई 12। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ये वाला ट्राई कर लो फटाक से। ट्राई कर लिया है तो देखो, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। कैसे करेंगे आइडिया लग रहा है? यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब ध्यान से देखना, फिगर बनाना ही इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस केस। ढंग से ये एंगल दे दिया आपको 15 डिग्री, मास है m स्क्वायर का और रेडियस सबका दिया हुआ है a। अच्छा, तो हम वो जो सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस लेंगे वो तो ऐसे लेंगे विच इज परफेक्टली पैरेलल, तभी हम लगा पाएंगे थ्योरम, वरना तो लगा ही नहीं पाएंगे। तो देयरफॉर I अबाउट दिस एक्सिस, मान लो वो a, तो I अबाउट a क्या आएगा? I अबाउट सेंटर ऑफ मास जो भी है प्लस md स्क्वायर, राइट? I अबाउट सेंटर ऑफ मास ये वाला है। अच्छा, वो कितना है? अभी जस्ट निकाला है, वो कितना है? वो कितना है? अभी जस्ट निकाला था, ma स्क्वायर बाई 12 प्लस m, और ये d क्या है? d क्या होता है? ये दो एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, ये निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? ध्यान से दे, ये निकाल सकते हैं क्या? ये तो मेरे को पता है कितना होता है। ये जो एक स्क्वायर है पूरा, एक स्क्वायर का डायगोनल मेरे को पता है कितना बड़ा होता है। स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है? ये a और ये a, तो स्क्वायर का डायगोनल √2a, तो ये कितना? √2a बाई 2, दैट इज a बाई √2। ये कितना? a बाई √2। अच्छा देखो, ये 15 डिग्री और ये डायगोनल है तो ये 45 डिग्री। ठीक, अच्छा ये पूरा 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये कितना होना चाहिए? 30 डिग्री। ये होना चाहिए 30 डिग्री। तो देयरफॉर ये जो d का वैल्यू आया वो कितना आया? a बाई √2 cos 30 डिग्री, इसका स्क्वायर, दिस इज ma स्क्वायर बाई 12 प्लस ma स्क्वायर इंटू 3 बाई 8, दैट इज 11 ma स्क्वायर बाई 24। ठीक है, अगेन ये वाला क्वेश्चन है वही झमेला है कि इसके अबाउट था कि उसके अबाउट था। आई एम नॉट एग्जैक्टली एबल टू रिकलेक्ट दैट वन, बट मैं वो होगा तो आप कर सकते हैं सिंपल। बेसिकली आइडिया क्या लगाना है बता दे रहा हूं आपको। होता है mh स्क्वायर बाई 6 है, किस एक्सिस के अबाउट मैं चेक करके बताता हूं आपको। पर जब mh स्क्वायर बाई 6 पता पड़ जाता है अपने को, तो मैं फिगर कंप्लीट कर सकता हूं। कैसे? देख इसका कितना m, मान लो ये जो स्क्वायर प्लेट है पूरा है,
स्क्वायर प्लेट को हम क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। इसका मास m, इसका भी मास कितना हो जाएगा m, वो तो क्लियर है ढंग से, 100% क्लियर है ना। ओके, अब ध्यान से देखो, अगर मैंने ये कंप्लीट कर दिया, आज स्क्वायर कंप्लीट करके बता सकता हूं, स्क्वायर कंप्लीट करके बताता हूं। देखो ट्रायंगल का रिक्वायरमेंट ही नहीं है इस केस में भी उस केस में भी, ऐसे ही बता दूंगा। देखो इसका मास m और इसका मास m, ठीक, ओके। तो इस एक्सिस के अबाउट बता सकता हूं कितना होगा। अगर पूरा स्क्वायर प्लेट होता, अगर पूरा स्क्वायर प्लेट होता तो उस स्क्वायर प्लेट का आई कितना होता, स्केलर है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसका आई होता इसके अबाउट स्क्वायर का कितना होता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप इस प्लेट को ऐसे करके बना दोगे, खैर मैं आपको बाद में बताता हूँ ये इसमें क्या गलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अभी हो सकता है क्लास में ना बता पाऊं तो मेरे को अब लाइव क्लास में पक्का पूछना कि ऐसे बनाने में क्या गलती है। ऐसे बनाने में गलती है, जबरदस्ती का करके आंसर आएगा ही नहीं, जबरदस्ती करने का फायदा क्या है। इसमें गलती था वैसे बनाने में, जब भी मेरे को पता पड़ा। वैसे नहीं बना सकते आप, कैसे करके बनाना पड़ेगा, सिमेट्रिक बनाना पड़ेगा, ध्यान से देखना। ऐसे करके स्क्वायर को कंप्लीट करना पड़ेगा अपने को, लाइक दिस। वी हैव टू कंप्लीट द स्क्वायर लाइक दिस, देन ओनली वी कैन प्रोसीड अहेड। ओके, स्क्वायर पूरा हो गया ना, हाँ, ये है ए और ये है ए। ओके, स्क्वायर का साइड कितना है, अगर आप ध्यान से देखो, ये ए और ये ए, तो √2a इज द साइड ऑफ द स्क्वायर। ये स्क्वायर बना कि नहीं पहले वो तो देख लो, स्क्वायर तो बनना चाहिए, हो जाएगा क्वेश्चन, विदाउट ट्रायंगल का इंफॉर्मेशन भी हो जाएगा। चलो देखो फटाक से, हाँ, तो हमने क्या किया बेसिकली, ये ए और ये ए था, तो हम ऐसा करके इमेजिन किया कि और भी प्लेट्स रखा हुआ है। ओके, अब क्या इसके अबाउट मेरे को पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। सबसे पहले देखो ये स्क्वायर बना कि नहीं, इसका भी √2a स्क्वायर बन गया, बहुत अच्छा बात है। स्क्वायर का इसके अबाउट कितना होता है, उसके अबाउट होता है m a स्क्वायर बाई 6, मतलब बेसिकली a है x स्क्वायर, m इंटू उसका मास ऑफ द स्क्वायर जो भी होगा m डैश इंटू उस स्क्वायर का जो साइड है बाई 6, यही होता है राइट। ओके, यहां पर इस स्क्वायर प्लेट का मास कितना होगा, देख इसका मास खाली m दिया है, इसका भी m सिमेट्रिकली, इसका भी m, इसका भी m। इमेजिन कर रहे हैं हम, निकालना सिर्फ इसी का है, परेशान मत होना, निकालना सिर्फ उसका है, पर हम इमेजिन कर रहे हैं बाई कंप्लीटिंग द फिगर। तो आई ऑफ स्क्वायर प्लेट कितना आएगा, मास ऑफ द स्क्वायर प्लेट इंटू साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर कितना होगा, √2a का स्क्वायर, ma स्क्वायर बाई 6, कितना आया 4m 2a स्क्वायर बाई 6, तो 4ma स्क्वायर बाई 3। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई है इस एक्सिस के अबाउट, इसका सिर्फ ये वाले ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस अगर आई है, तो हम लॉजिकली समझ सकते हैं कि इसका कितना होगा, ये वाले ट्रायंगुलर प्लेट का कितना होगा, इसका भी आई ही रहेगा। ये वाला ट्रायंगल सिर्फ इसका कितना होगा, इस एक्सिस के अबाउट आई ही रहेगा, सिमेट्रिक है सब। सो देयरफॉर आई कैन से दैट आई ऑफ पूरा स्क्वायर प्लेट should be equal to 4 times I which I need, करेक्ट, क्योंकि स्केलर है ना, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 दैट इज 4 टाइम्स ऑफ 1, और I व्हाट आई नीड कितना आ गया, ma स्क्वायर बाई 3, ये आंसर इज कॉल्ड कंप्लीटिंग द फिगर मेथड। जो मेथड कोई नाम नहीं है, मैं ऐसे बोल दी, क्लियर, ठीक। ये वाला वैसे ही कर सकते हैं क्या, ये वैसे ही कर सकते हैं, कैसे देखो, स्क्वायर पूरा कर लेते हैं ऐसे करके, स्क्वायर जब पूरा कर लिए, इसका मास m दिया हुआ है, तो पूरे स्क्वायर का मास, मतलब पूरे स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस, वो एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, मास स्क्वायर का साइड का मतलब स्क्वायर का साइड का स्क्वायर ma स्क्वायर बाई 6, दिस शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट, करेक्ट। आंसर कितना आ गया, ma स्क्वायर बाई 6, आंसर ma स्क्वायर बाई 6 इज द आंसर। अब याद है ये वाला फिगर में क्या गलती कर रहे थे, देख गलती होता अगर कोई बच्चा ऐसे करके बना दे उसको, सपोज यहां पे दिया हुआ है, फिगर कंप्लीट करना थोड़ा समझ के, ऐसे नहीं फिगर कंप्लीट करने के लिए ऐसे बना दिया, ऐसे अगर बना देता और वो लिखता कि इसके अबाउट जो है, अगर सपोज ऐसे आप लिख देते, इसके अबाउट स्क्वायर का कितना होता है,
ये एक्सिस के अबाउट स्क्वायर का कितना होगा देख, इसके अबाउट प्लस इसके अबाउट कितना होगा ma स्क्वायर बाई 3, और इसके अबाउट कितना होगा, अच्छा सबसे पहले तो हाँ स्क्वायर का साइड तो यही है, हाँ तो इसके अबाउट कितना ma स्क्वायर बाई 3 प्लस ma स्क्वायर बाई 3, आई अबाउट a पकड़ लो आप, कितना हो जाएगा, ऐसे करके पकड़े हैं तो दिस ma स्क्वायर बाई 3 और प्लस दिस ma स्क्वायर बाई 3, तो 2ma स्क्वायर बाई 3 अबाउट दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस, इसके अबाउट क्या होगा दिस प्लस दिस, तो 2ma स्क्वायर बाई 3, ओके। तो वो सोचेगा कि ये होना चाहिए था किसका, स्क्वायर प्लेट का, वेयर द मास ऑफ द स्क्वायर प्लेट इज इन रियलिटी, मतलब ये नहीं है, स्क्वायर प्लेट का मास एक्चुअली में 2 टाइम्स ऑफ दिस मास है, स्क्वायर प्लेट का साइड तो यही है एज पर द क्वेश्चन, तो ये लिखता, अगर एक ज्यादा दिमाग लगा देता तो 4ma स्क्वायर बाई 3 लिख देता, और लिख देता कि 4ma स्क्वायर बाई 3 इक्वल्स टू, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होगा तो उसका भी आई ही होगा, दिस इज इक्वल्स टू 2i, तो उसका आंसर आ जाता 2ma स्क्वायर बाई 3, हमारा तो ma स्क्वायर बाई 3 है। क्या गलती है, क्या गलती है, गलती ये है कि देखो ध्यान से, हम जब आई ऑफ स्क्वायर प्लेट इक्वल्स टू ये वाले केस में लिखे I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, 4 पार्ट था, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम था, क्यों, क्योंकि सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाज अबाउट दिस एक्सिस, अरे एक्सिस नहीं भूलना, सिमेट्रिक तो दिख ही रहा है, सब एक ही जैसा फिगर लग रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाज सेम अबाउट दिस एक्सिस, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज इक्वल्स टू इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इक्वल टू इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, तो एक्सिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाले केस में क्या है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज से I1, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस विल बी I1, पर इस फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस विल नॉट बी I1, इसका कुछ I2 है, इसका ये जो फिगर है इसका इस एक्सिस के अबाउट I1 नहीं है, कुछ और होगा, इसका इस एक्सिस के अबाउट वही होगा जो इसका इस एक्सिस के अबाउट। So therefore when you are completing the figure, ये यहाँ पे काम क्यों किया, क्योंकि यहां से पूछा है, ये सेंटर है, बोला था मैं आपको क्वेश्चन में, ये सेंटर है इस लाइन का, तो फिगर ऐसे कंप्लीट करेंगे तो इसका अबाउट दिस और इसका अबाउट दिस सेम आएगा, देयरफॉर 2i लिख पाए, तो वो ध्यान देना क्वेश्चन में, ठीक है। अब इसको ऐसे भी कर सकते थे, अगर ट्रायंगल का आपको पता हो तो वो मैं बता दूंगा आपको बाद में, टेंशन नहीं, ठीक है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टाइल कैसे करके करना है, कंप्लीटिंग द फिगर, ठीक है। चलिए एक लास्ट कैविटी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स जो हमारा सेंटर ऑफ मास में भी आया था, और कैविटी प्रॉब्लम्स पूछता भी है, कई बार पूछा भी है और पूछेगा भी मोस्टली, ध्यान से देख लो वो चीज कितना, जस्ट लेट मी चेक वंस द टाइम, ओके, ध्यान से देखो कैविटी प्रॉब्लम सिंपल, इट इज इवन मोर इजियर, अभी तक कुछ भी टफ नहीं था, अगर आप ध्यान से देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ही इजी टॉपिक है एक्चुअली इन कंपैरिजन टू सेंटर ऑफ मास, बिकॉज देयर इज नथिंग, दो थ्योरम आपको याद रखना है बस, एंड थोड़ा इमेजिनेशन यूज करना है, दैट्स इट, नथिंग एट ऑल टफ। देख कैविटी प्रॉब्लम बहुत आसान, मान लो ऐसा करके एक फिगर है, फिगर क्या है, ऐसा करके एक डिस्क है, डिस्क का मास 9m, रेडियस r, यहां से एक पोर्शन काट लिए, दिस पोर्शन इज रिमूव्ड, दिस पोर्शन इज रिमूव्ड, इसका रेडियस r/3 है, इसका रेडियस कितना है r/3, दैट्स इट, इसका रेडियस है r और उसका रेडियस है r/3 जो रिमूव किया गया है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट a, और a क्या है, ये एक्सिस ऐसे करके, a एक्सिस ऐसा करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, बहुत सिंपल सा, मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूं, ध्यान से देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेट क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट, पर ये चीज बस ध्यान रखना जो कह रहा हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस होल माइनस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कैविटी, सिंपल, जितना कैविटी कर लो माइनस माइनस करते रहना, जितना कैविटी करना है कर लो, माइनस माइनस करते रहना जितना नंबर ऑफ कैविटीज है, यहां बस I1 माइनस आई ऑफ कैविटी, ध्यान क्या रखना है सुनो, ये तीनों का I मस्ट बी अबाउट रिक्वायर्ड एक्सिस, इस तीनों ही केस में जब I ऑफ जो नेट निकला वो इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो I1 कौन सा एक्सिस के अबाउट लेंगे, पूरा जो डिस्क है, ओरिजिनली ये डिस्क है, क्वेश्चन में दिया हुआ है डिस्क, इस जो डिस्क है इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इस एक्सिस के अबाउट है, तो आई ऑफ कैविटी का भी किसके अबाउट निकालेंगे, इस एक्सिस के अबाउट, तो जो नेट निकलेगा वो इस एक्सिस के अबाउट निकलेगा, ये ध्यान में रखना है आपको, कैलकुलेशन मिस्टेक वही होता है जब एक्सिस आपका जब एक्सिस का ध्यान नहीं रखते आप, बाकी कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगा, सिंपल।
तो आई अबाउट 1 कितना है बता दो। डिस्क, ओरिजिनल डिस्क अगर रहता, बेसिकली ऐसा है, बेसिकली ऐसा है, इसका मास है 9m और इसका रेडियस है r प्लस ये कैविटी है, पर इसके अबाउट निकालना है, ये ध्यान रखना। इसका तो इसी के अबाउट निकालना है, पर इसका इसके अबाउट निकालना है। ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस, ये देख r/3, तो ये 2r/3, और इसका मास निकालना पड़ेगा अपने को कितना है, बस, बाकी तो कुछ खास नहीं। ठीक, देख इसका कितना हो जाएगा, m r²/2, ये हो गया I1 माइनस, अब इसका लिखना पड़ेगा अबाउट दिस, इसका लिखना पड़ेगा अबाउट दिस, वो ध्यान रखना प्लीज, बार बार कह रहा हूं मैं। उसका सबसे पहले इसका फॉर्मूला तो वही है, इसका अगर मेरे को लिखना है अबाउट दिस, तो इसका अबाउट दिस सेंटर ऑफ मास प्लस md², अबाउट दिस लिखना है तो आई अबाउट दिस प्लस md², तो आई अबाउट दिस कितना होगा, आई अबाउट दैट होगा m डैश mr²/2, वो m डैश निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, पहले सिग्मा निकालना पड़ेगा उसके लिए, मास पर यूनिट एरिया। ये दिया है आपको डिस्क इनिशियल, मतलब इनिशियली दिया हुआ था कंडीशन कि मास 9m है, ये आपको ये कंफ्यूजन होना चाहिए था कि काटने के बाद 9m बचा कि काटने से पहले 9m था फिर काटा, ये क्वेश्चन में दिया होना चाहिए, एकदम अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना। कभी कभी काटने के बाद बोलता है जो बचा डिस्क उसका मास 9m है, उस केस में डिफरेंट कैलकुलेशन होगा, और अगर काटने से पहले 9m दिया है तो डिफरेंट कैलकुलेशन होगा, क्योंकि मास पर यूनिट एरिया विल वेरी। तो ये काटने से पहले इनिशियली डिस्क 9m एंड देन काटा गया, तो क्वेश्चन ज्यादा आसान होता है उस केस में। काटने के बाद अगर दिया है मास तो थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी जाता है बस। खैर, सिग्मा क्या आ गया, 9m बाई मास पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाई छुटकू वाला का एरिया कितना है, πr², और r² कितना है, r²/9 छोटू के लिए, क्योंकि उसका r/3 है। तो अगर ध्यान से देखो, πr² कट गया, 9 कट गया, तो छोटू का मास आ गया m, तो उसका मोमेंट, छोटू का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस कितना हो जाएगा, mr²/2, m तो m ही है छुटकू के लिए, इसका r² कितना है, r²/9/2, mr²/18, ये mr²/18 इसके अबाउट आया, इसके अबाउट कितना होगा, यहीं लिख लो, mr²/18 प्लस m ऑफ 4r²/9 आ गया 18, 1 प्लस 9, ये आ गया mr²/2 माइनस mr²/2, ये कितना आ गया, 8 mr²/2, 4 mr² वाज द आंसर। कैविटी टाइप प्रॉब्लम्स ऐसा करके करते हैं हम, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लो। ठीक है, मैं क्लास में करा दूंगा आपको, पर एक और क्वेश्चन है, इट्स नॉट रिलेटेड टू कैविटी, जस्ट जनरल क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया तो मैं पूछ रहा हूं आपसे। इसका मास आपको m दिया हुआ है, पता नहीं कैविटी का हो भी सकता है, कैसे सॉल्व होगा मेरे को भी नहीं पता, मैं दे रहा हूं आप लोग को आप ही के सामने। ये है मास m, सपोज इनर रेडियस r1 और आउटर रेडियस r2, इसका बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस। मास का ध्यान रखना, मास इसका दिया हुआ है, सिर्फ सिर्फ उसका मास दिया हुआ है, ठीक है। तो कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, कैविटी टाइप से ही कर लेते हैं। देखो आई ऑफ नेट क्या होगा, I1 माइनस I2 बोल सकते हैं क्या, इसको दो मेथड से मैं करके दिखाता हूँ फटाक से, टाइम है ना अपने पास, देख लेना दो यार, टाइम है, चलो फटाक से करके दिखाता हूँ, मैं दोनों मेथड से करके दिखाता हूँ, एक तो DMR² वाला मेथड और एक कैविटी वाला मेथड, देख लेते हैं सही आंसर आता है कि नहीं दोनों मेथड से। फास्ट कैलकुलेशन करेंगे, देख I1 माइनस I2, पहले तो सिग्मा निकालो, सिग्मा होगा मास बाय एरिया, दैट इज पाई r2² माइनस r1², राइट। I1 कितना आएगा, बड़ा वाला mr²/2, m कितना आएगा, m बाई पाई r2² माइनस r1², सिग्मा बड़े वाला का एरिया है पाई, ये हो गया मास m r², या mr²/2 सॉरी, माइनस छुटकू वाला का बात करें तो मास पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाय उसका एरिया पाई r1², ओके। ये हो गया m r1² बाई mr²/2 होता है ना, माइनस कर दिया, बस यही आंसर है, पाई पाई कट गया, पाई पाई कट गया,
m by 2 r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, r2 का पावर 4 माइनस r1 का पावर 4, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आ रहा है। ठीक है, इसको दूसरा मेथड से भी कर सकते हैं जो हम बेसिक सीखे हैं पहले, इंटीग्रल ऑफ dm इंटू आर स्क्वायर, ऐसे करके भी कर सकते हैं, थोड़ा लेंदी हो जाएगा तो करते हैं। देखो ऐसे करके एक मान, पूरा कचड़ा हो गया, ये अपना डिस्क दिया हुआ है R1, देख लो फटाक से क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस हो जाएगा अपना, अपना मतलब मेरा नहीं तुम लोग का। ये है यहाँ पे ऐसे करके रिंग, तो R पे जा करके हम माने dr का एक छोटा सा रिंग, R पे जा करके, कहां R कहां है, ये R पे जा करके छोटा सा dr का रिंग मान लो, आप समझ रहे हो ना, ये dr का एक रिंग है ऐसे करके। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, dm क्या लिखेंगे, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया, और उसका एरिया कितना है 2 पाई r dr, ये हो गया dm r स्क्वायर, सही है। और r कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, r1 से लेकर के r2 तक, यही हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया dm r स्क्वायर, dm सही से लिखा है, r स्क्वायर आंसर सही आना चाहिए, देख ले 2 पाई m बाई पाई पाई काट दो, r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, और यहां पे है r क्यूब, वो आएगा r का पावर 4 बाई 4, और r का पावर 4 मतलब r2 का पावर 4 माइनस r1 का पावर 4, शायद यही आया था, हाँ वही आया था, ठीक है, सब कुछ ठीक है इसका मतलब, तो आंसर वही आएगा जो आया था पहले भी अपना, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। तो आप जो भी मेथड से करो, चाहे ऐसे कर लो, कैविटी वाला से थोड़ा ज्यादा, जैसे जो भी आपको लगे आप जैसे भी चाहे कर सकते हैं, पर ध्यान रखना ये मेथड हमेशा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और ये सब थोड़ा सा शॉर्टकट्स है। तो हमने बेसिक क्लास में फटाक से समराइज कर दे रहा हूँ क्या क्या सीखा। सबसे पहले फटाक से रिवीजन कर लिया, सारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, सारे के सारे फिगर्स का ढंग से, और किस एक्सिस के अबाउट है वो भी, आज कंफ्यूजन हो गया ट्रायंगुलर प्लेट में, तो ध्यान रखना किस एक्सिस के अबाउट फॉर्मूला दिया गया है, वो एक्सिस भी आपको याद रहना चाहिए ढंग से, सारे फॉर्मूला आपको याद रहने चाहिए। दूसरा चीज, एक्सटेंडेड बॉडीज के लिए इंटीग्रल ऑफ डीएम आर स्क्वायर मारेंगे, बहुत ही सिंपल, आराम से कर सकते हैं। तीसरा चीज, अपना सबसे पहले परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़े, परपेंडिकुलर एक्सिस सिर्फ प्लेनर बॉडीज के लिए वैलिड होता है, तो ढंग से मारना, उस बॉडी पहले चेक करना प्लेनर है कि नहीं, और अगर प्लेनर है, दो परपेंडिकुलर एक्सिस होगा, इट शुड लाई इन द प्लेन ऑफ द बॉडी, ये भी ध्यान रखना, और परपेंडिकुलर वाला काम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। उसके मदद से किसका निकाले थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग व्हेन द एक्सिस इज इन द प्लेन ऑफ द रिंग, वैसा करके क्वेश्चंस कर लिए थे हम लोग। तो अब वो आपको कैलकुलेट नहीं करना, माइंड में रहना चाहिए कि अगर एक एक्सिस है विच इज इन द प्लेन ऑफ द रिंग, उसका कितना हो जाएगा mr²/2, ठीक, डिस्क वाले का mr²/4, डायरेक्टली आपको ये सब अब याद रहना चाहिए। अगर स्क्वायर का बात कर रहे हैं तो उसके प्लेन में अगर कोई भी एक्सिस हो, कितना हो जाएगा ma²/12, क्योंकि परपेंडिकुलर जो स्क्वायर से पास करता है उसका होता है ma²/6, ये सब एकदम एग्जैक्ट याद रहना चाहिए आपको। परपेंडिकुलर एक्सिस के बाद बात की थी पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई अबाउट एनी एक्सिस इक्वल टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस m व्हिच इज द मास ऑफ द एंटायर बॉडी इनटू d स्क्वायर। d स्क्वायर क्या है, d स्क्वायर इज द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस एंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी। सो उससे कई सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते रहेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, इसलिए जो भी क्वेश्चंस कराया था दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट, कैविटी टाइप प्रॉब्लम्स, वो ध्यान देना, कैविटी सिंपल है, बेसिकली आई ऑफ द होल बॉडी माइनस कैविटी का सेंटर ऑफ मास, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कैविटी अबाउट जिस एक्सिस से पूछा है वो, कैलकुलेशन मिस्टेक वहां मत करना, एक्सिस का हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद कंप्लीटिंग द फिगर वाला प्रॉब्लम्स भी देखे थे कि अगर फिगर इनकम्प्लीट लग रहा है और मेरे को कंप्लीट फिगर का मेरे को अगर पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो फिगर कंप्लीट कर लेंगे, मास का ध्यान रखेंगे वो जो फिगर कंप्लीट हुआ उसका, और उसके हिसाब से इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ लगा के, जो भी जितना भी था, 2 बार आया, 3 बार फिगर आया, 4 बार फिगर आया, जितना बार आए इक्वल्स टू उतना कर लेंगे। फिगर कंप्लीट करते टाइम ध्यान रखेंगे सिमेट्रिकली फिगर कंप्लीट करना है, फिर ये कंप्लीशन ऑफ फिगर हो गया। यही बताया, हाफ अगर रिंग है तो उसका डायरेक्ट mr² लिख सकते हैं उस एक्सिस के अबाउट जिस एक्सिस के अबाउट फिगर कंप्लीट होता है, किसी भी एक्सिस के अबाउट मत लिख लेना। वो जो एक सेमी सर्कुलर वाला क्वेश्चन कराया था वो भी अच्छा था कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर हमको नहीं पता होता है तो किसी भी दो एक्सिस के अबाउट i इक्वल टू i प्लस md² नहीं करते, उसमें एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास वाला होना ही चाहिए कंपलसरी, वरना कैलकुलेशन मिस्टेक यहीं पे होता है। बाकी इट्स प्रीटी इजी। एंड नाउ विल प्रोसीड विद रोटेशनल, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एवरीथिंग इज वेरी इजी, वेरी सिंपल, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ऑलरेडी सब कुछ पढ़े हुए हैं आप, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।